یہ واقعات حضرت عیسیٰ کی حیات مقدس کے چشمدید گواہوں یعنی حضرت متی، حضرت مرقس، حضرت لوقا اور حضرت یوحنا کی معرفت لکھی گئی ملہم اناجیل مقدسہ کے مطابق ہیں۔ حضرت مریم مجدلینی نے جو آپ کی صحابیہ تھیں، 2000 سال پہلے کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں واقعات کو بالکل صحیح اور مؤثر انداز میں پیش کیا۔ کوئی بھی شخص حضرت عیسیٰ کا کردار کرنے کے قابل نہیں، تو بھی اس فلم میں ایک شخص آپ کا کردار ادا کر رہا ہے تاکہ ہم آپ سے متعلق جان کر فیضیاب ہو سکیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر شام کو کیسے خوبصورتی سے بھرتا ہے، اس سے وہ عظیم محبت یاد آتی ہے، مجھ سے، تم سے۔ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، کیا میں اس کی نظر میں ہوں؟ مجھے جانتا بھی ہے کہ نہیں؟ شاید اللہ صرف نیک لوگوں سے ہی پیار کرتا ہے، لیکن مجھ جیسے سے نہیں۔ ربکا، حضرت عیسیٰ مسیح نے جو ہمیں سکھایا کاش تم سیکھتی۔ مالک عیسیٰ؟ سفیرہ، آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ ہاں، ہمیں اپنی کہانی سناؤ گی؟ ہاں، میں سناؤں گی۔ اندر آ جائیں۔ اچھا، تو میں شروع سے بتاتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ سے کب ملی تھی؟ نہیں، حضرت عیسیٰ کا واقعہ سمجھنے کے لیے شروع سے بیان کرتی ہوں۔ جیسا کہ پاک صحائف میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں زمین اور تمام درخت، حیوانات، پرندے اور آبی جاندار پیدا کیے۔ اس نے مٹی سے پہلا انسان بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس کا نام آدم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کے لیے اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے مناسب ساتھی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی ایک پسلی نکال کر ایک عورت بنائی جس کا نام حوا رکھا۔ اسے آدم کے سر سے نہیں کہ اس پر راج کرنا ہی پاؤں سے کہ اس سے روندی جائے، بلکہ پہلو سے نکالا کہ اس کے ساتھ رہے، اس کی حفاظت میں ہو اور اس کے قریب، تاکہ وہ اس سے محبت رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ محبت سے معمور ہے۔ اس نے اپنی صورت کی عکاسی کے لیے مرد و زن کو بنایا کہ اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکے اور انہیں ساری مخلوق پر اختیار بخشا۔ حضرت آدم اور حوا جنت ارضی میں رہتے تھے جو اس نے ان کے لیے خود تیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ باغ میں ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا جہاں دکھ، پریشانی اور موت نہ تھے۔ اس نے حضرت آدم سے فرمایا کہ ماں سوائے شجر ممنوعہ کے باغ کے تمام درختوں کا پھل کھا سکتے ہو، اس درخت کا پھل کھایا تو مر جاؤ گے۔ ایک دن شیطان نے حوا کو ورغلایا۔ حضرت حوا نے پھل لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور انہوں نے بھی پھل کھایا۔
حضرت آدم اور حوا کی نافرمانی نے دونوں کی باہمی اور پھر خدا کے ساتھ رفاقت کی محبت کی دھجیاں اڑا دیں۔ مرد کو سخت ترین محنت کی سزا ملی اور عورت کو یہ سزا کہ درد سے بچوں کو جنم دے گی اور اس کی رغبت شوہر کی طرف ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ایک دن عورت کی نسل سے ایک ہستی آئے گی جو سانپ کے سر کو کچل دے گی۔ پاک صحائف میں خدائے رحمان اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق بحال کرنے کے بارے میں اپنے منصوبے کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کا کچھ حصہ حضرت ابراہیم پر ظاہر کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں برکت دینے کا وعدہ فرمایا، تیرے وسیلے سے اہل زمین برکت پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر کی ریت اور ستاروں کی مانند کثیر نسل بخشنے کا وعدہ کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صالح اور خلیل اللہ کہہ کر پکارا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم کے اسی بیٹے کے وسیلے سے اس نے بہت سی اولاد بخشنے اور قوموں کو برکت دینے کا وعدہ کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اس کی فرمان برداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم، میں نے دیکھ لیا کہ تو میرا فرمان بردار ہے، میری راہ میں اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ حضرت ابراہیم نے قریب ہی ایک مینڈھا دیکھا، بس اپنے بیٹے کی جگہ آپ نے اسے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرزند ابراہیم کے بجائے مینڈھا مہیا کرنا اس کے عظیم منصوبے کی ایک جھلک تھی۔ اس منصوبے سے گناہ اور جہنم کی سزا ختم ہو جائے گی اور ہر فرد بشر خدا کے ساتھ تعلق میں بحال کر دیا جائے گا۔ پاک صحائف میں ایک آنے والے کے بارے میں پیشن گوئیاں ہوئیں جس نے انسان کے گناہوں کے لیے اپنی جان دینی تھی۔ انبیاء نے اس ہستی کو مسیحا کہا اور فرمایا کہ اس کا آنا بڑی برکت کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ نجات دہندہ، نبی اور بادشاہ ہوگا۔ حضرت اشعیاء نے فرمایا کہ مسیحا آ کر کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا، مسیح اللہ غریبوں کو خوشخبری سنانے، شکستہ دلوں کو تسلی دینے، قیدیوں کو آزادی بخشنے اور یہ کہنے کے لیے آئے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پروردگار اپنے لوگوں کو نجات بخشے۔ ایک ایسے معلم اس دنیا میں ہو گزرے ہیں جن کا نام حضرت عیسیٰ تھا۔ کیا یہ وہی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سانپ کا سر کچلنے، ہماری تاریک دنیا روشن کرنے اور ہماری لعنت کو برکت میں بدلنے آنا تھا؟ کیا یہ مسیح موعود ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ کسی خوفزدہ شخص کو بھی آزاد کر سکتے ہیں؟ ناصرت میں ایک کنواری لڑکی رہتی تھی جن کی منگنی حضرت یوسف سے ہو چکی تھی۔ آپ کا نام حضرت مریم تھا۔ بختاور ہو تم، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خوف نہ کرو مریم، اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا ہے۔ تم امید سے ہوگی اور ایک بیٹے کو جنم دو گی، تم اس کا نام عیسیٰ رکھنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو کنواری ہوں۔ یہ سب کچھ قدرت الہی سے ہوگا۔ آپ سے پیدا ہونے والا بچہ بہت عظیم ہوگا
اور فرزند توحید کہلائے گا۔ یہاں تک کہ آپ کی رشتہ دار بی بی الشبا جنہیں بانج کہا گیا وہ بھی 6 ماہ سے امید سے ہیں اور ان سے بھی اس عمر میں بیٹا پیدا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ کی بندی ہوں، اس کے فرمان کے موافق ہو۔ حضرت مریم فوراً اپنے رشتہ دار بی بی الشبا سے ملنے نکلی۔ الشبا، مریم، مریم، اوہ، تو یہ سچ ہے؟ آپ جہان کی عورتوں پہ مبارک ہے، مبارک ہے وہ جو آپ سے پیدا ہوگا۔ مجھ پر یہ کرم کہاں سے ہوا کہ میرے آقا کی ماں خود میرے پاس تشریف لائیں؟ جو ہی میں نے آپ کی آواز سنی، بچہ خوشی سے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ اللہ کی حمد کرتی ہوں، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، اس نے میری پست حالی پر نظر کرم کی۔ ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ حضرت مریم بی بی الشبا کے ہاں 3 ماہ تک ٹھہری۔ حضرت یوسف کو معلوم ہوا کہ میری منگیتر امید سے ہے، تو آپ نے بی بی مریم کو خاموشی سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے پاس خواب میں ایک فرشتہ بھیجا۔ مریم کو اپنے ہاں بطور بیوی لانے سے نہ ڈر، کیونکہ وہ روح الہی سے امید سے ہے۔ اس سے ایک بیٹا ہوگا، تو اس کا نام عیسیٰ رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے گا۔ حضرت یوسف نے بی بی مریم کو بطور بیوی قبول کیا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت بیت الحم کی ایک سرائے میں ہوئی جہاں جانور باندھے جاتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف اور بی بی مریم کے رشتہ داروں کے ہاں کوئی جگہ نہ تھی، اور فرشتوں کی بڑی جماعت نے آپ کی ولادت کی بشارت دی۔ ختنے کے وقت آپ کا نام عیسیٰ رکھا گیا، جس کے معنی ہے خدا بچاتا ہے۔ یوں بی بی مریم اور حضرت یوسف اس بچے کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے سب سے بڑی عبادت گاہ میں لائے۔ وہاں انہیں ایک بزرگ ملے جن کا نام حضرت شمعون تھا۔ یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ ہے، یہ لوگوں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان ہے، بہت سے لوگ اس کے برخلاف بولیں گے اور یہ ان کے دل کے خیال ظاہر کرے گا۔ دکھ کی بات یہ ہے، خود تیری جان بھی تلوار سے چھپ جائے گی۔ ان کے بارے میں سن کر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ حضرت عیسیٰ ایک عام نبی سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ فرشتے نے خدا تعالیٰ کا بیٹا کے لفظ کہے تو اس کا کیا مطلب تھا؟ تو کیا تمہارا مطلب ہے کہ اللہ کے کسی اور سے تعلقات تھے؟ نہیں، یاد رکھو بی بی مریم کنواری تھی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت واقعی قدرت الہی سے معجزہ تھا۔ اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کا ایمان نہیں؟ معجزانہ آغاز کے لیے حضرت عیسیٰ ہماری ہی طرح کی خاتون سے پیدا ہوئے، لیکن وہ عظیم تھے،
اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور پاک غسل لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جب حضرت یحییٰ دریائے اردن پر لوگوں کو پاک غسل دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خود فرمایا تھا، میں پانی سے پاک غسل دیتا ہوں، لیکن ایک ذات آتی ہے جس کی بہت بڑی شان ہے، میں تو ان کی جوتیاں بھی سیدھی کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ تمہیں قدرت الہی سے پاک غسل دیں گے، ان کا چھاج ان کے ہاتھ میں ہے تاکہ وہ کھلیان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو کھٹے میں جمع کرے۔ اور روح قدس حضرت عیسیٰ پر کبوتر کی مانند نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اس سارے علاقے میں تبلیغ کرتے پھرے اور ان کا پیغام ان کے اختیار کی تصدیق کرتا تھا۔ کیا یہ مریم کا بیٹا نہیں؟ ہاں وہی ہے۔ خاموش رہو۔ قدرت الہی میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے غریبوں کو نویز سنانے کے لیے چنا ہے، اس نے مجھے قیدیوں کو رہائی بخشنے اور اندھوں کو بینائی دینے کے لیے بھیجا ہے، ستائے ہوئے لوگوں کو آزاد کرنے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ صحیح کہتا ہے۔ کلام اللہ کی بات آج پوری ہو گئی، جیسا تم لوگوں نے سنا۔ پیشن کوئی پوری ہو گئی؟ یہ وعدہ تو المسیح ہی پورا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کیسے جانیں؟ آپ کے کلام سے لوگ حیران رہ گئے اور معجزات کے باعث بہت لوگ ایمان لائے۔ یہ وہی ہے؟ پھر وہی کہانی۔ یہ کون ہے؟ یہ ناصرت کا وہی عالم ہے، عیسیٰ۔ کیسی ہو؟ آداب۔ چلی جاؤ، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ آقا، اسے رہنے دیں، اسے دیکھ کر اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں۔ مریم، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں عیسیٰ ناصری؟ ہم جانتی ہیں کہ آپ اللہ کے قدوس ہیں۔ خاموش۔ جن بھوتوں، نکل جاؤ اس میں سے۔ یہ تو مر گئی۔ اسے مار دیا۔ وہ اسے چھوئے گا؟ نہیں، ایک مذہبی آدمی ایسا نہیں کرے گا۔ مریم دختر ابراہیم، وہ ٹھیک ہو گئی۔ وہ زندہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ کون آدمی ہے؟ روحیں بھی اس کا حکم مانتی ہیں۔ یہ تو معجزہ ہے۔ ہاں، یہ تو معجزہ ہے۔
ये कैसे मुमकिन है? शुक्रिया। 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 उस दिन से मैं उनकी पैरोकार बन गई। मैं वही करना चाहती जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी हो। मैंने कई साल शर्मिंदगी में गुजारे। मसीहा ने मेरा सर ऊंचा कर दिया। आपने बड़े इख्तियार से बदरूहों को निकाला। अरे मेरी प्यारी सफीरा। दीना, तुमने हजरत ईसा को तबलीग और मौजज़ात करते देखा? यकीनन। तो फिर मालूम होगा कि मैं क्यों सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो ली। और सिर्फ मैं ही नहीं थी, उनके हवारी भी थे। हजरत पतरस, बरतलामी, मत्ती, यहूदा अस्करियोती, कुल 12 थे। और खवातीन भी थी, सोसना, योआना, मैं खुद, और वो भी जिन्होंने हजरत ईसा और उनके हवारियों की खिदमत की। हमारा ईमान है कि जिस मसीहा के हम सदियों से मुंतजिर थे उसे अल्लाह ने भेज दिया। हमें गुनाहों से निजात बख्शने वाले की जरूरत थी। रोमी हुकूमत ने हम पर बड़ा सितम किया। हमारा सब कुछ ले लिया और जो बच गया उस पर टैक्स लगा दिया। हम हर एतबार से मजलूम थे और हमें जरूरत थी कि कोई हमें बचाए। साल हर साल की मायूसी के बायस कई हिम्मत हार बैठे थे। इसीलिए जहां कहीं हजरत ईसा का गुजर हुआ, आपने लोगों को उम्मीद दिलाई। कौन है ये? एक नौजवान, बेवा का इकलौता बेटा। उठो बरखुरदार। हम में एक बहुत बड़ा नबी बर्पा हुआ है। परवरदिगार ने हम लोगों पर नजर करम की है। बख्तावर हो मिस्कीनों, तुम्हें जन्नत की बशारत हो। बख्तावर हो तुम जब भूखे हो, अल्लाह तुम्हें सैर करेगा। बख्तावर हो रोने वालों, कल हंसोगे। जब लोग तुमसे नफरत करें, तुम पे लानतें भेजें, तुम्हें बुरा भला कहें सिर्फ मेरी वजह से, तो तुम बख्तावर होगे, खुशी से उछलना। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा अजर देगा। उनके असलाफ ने भी नबियों के साथ ऐसा ही किया था। 17, 18, 19, 20। मेरे पास यही है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुफ है तुम पर दौलतमंदो, तुफ है। तुम्हारे ऐश के दिन गए। ये अमीर नहीं बनना चाहता, ये कोई पागल ही होगा। तुफ है तुम पर ऐ हंसने वालों, मातम करोगे, रोओगे। तुफ है तुम पर जब लोग तुम्हें अच्छा कहें,
क्योंकि उनके बाप दादा झूठों को यही कहते थे। मैं तो तुमसे ये कहता हूं, दुश्मनों से प्यार करो, अदावत रखने वालों का भला करो, लानत करने वालों पर बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। जो तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। जो कोई तुमसे चौका मांगे, उसको कुर्ता भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगे, उसे दे दो। कोई तुम्हारा माल ले जाए तो वापस तलब ना करो। दूसरों से वही सुलूक करो जिसकी तवक्को तुम उनसे करते हो। अगर तुमने प्यार का जवाब प्यार से दिया तो फिर कौन सा एहसान किया? ये काम तो काफिर भी करते हैं। अगर भला करने वालों का भला किया तो कौन सा एहसान किया? काफिर भी यही करते हैं। वो उससे कैसे छू सकता है? वो उससे कैसे बात कर सकता है? घटिया कहीं का। नहीं, दुश्मनों से प्यार करो, उनका भला चाहो, कर्जे असना दो, वापसी कैसी? तुम्हें बड़ा अजर मिलेगा। खुदा तुम्हें प्यारे बंदे कहेगा। वो तो सब पर मेहरबान है। रहम करो जैसे परवरदिगार करता है। हजरत ईसा हमें बचाइए। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी न की जाए। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। माफ करो, तुम्हें भी माफ किया जाएगा। मालिक, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाइए। दिया करो, खुदा तुम्हें देगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से नापा जाएगा। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। यूं तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अपने भाई की आंख के तिनखे से तो बाखबर, लेकिन अपनी आंख के शैतीर से बेखबर। ए उस्ताद, हमें सिखाइए। मालिक, हमें आपकी जरूरत है। मुबारक है वो माँ जिससे आपकी विलादत हुई। उनसे बढ़कर बख्तावर वो हैं जो कलामुल्लाह सुनते और अमल करते हैं। हजरत ईसा ने तबलीग की कि अल्लाह ताला निहायत ही गुनाहगार शख्स से भी अच्छा सलूक करता है कि वो जहन्नुम में ना जाए, बल्कि उसे ढूंढ कर वापस लाता है। लोगों से प्यार करने और उनकी कदर और कीमत का हमें कोई पता ही नहीं था। हम अपनी आधी कौम को सदियों से हकीर जानते और उसके लिए ठोकर का सबब बने रहे, जब तक कि हजरत ईसा उनके इलाके में से हो ना गुजरे। कौन है ये जिसकी सब तहकीर कर रहे हैं? क्या ये काफी नहीं कि ये समारी है? चलो भाई, हमें खाना खरीदना है। ऐसा ना हो कि मालिक इंतजार करते रहें। पानी मिलेगा? आप यहूदी हो, मैं समारी औरत हूँ। क्या आप मेरे हाथ से पानी पी लेंगे? तुम अल्लाह की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि तुमसे पानी मांगने वाला कौन है, तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुम्हें आबे हयात देता। हजूर, पानी भरने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं और कुआं भी गहरा है, फिर आबे हयात कहाँ से आएगा? ये कुआं हमारे बुजुर्ग हजरत याकूब ने हमें दिया। उनके औलाद और उनके गल्ले यहीं से पानी पिया करते थे। फिर क्या आप हजरत याकूब से बड़े होने का दावा करते हैं? ये पानी पीने वाला तो फिर प्यासा होगा। मैं आबे हयात देता हूँ, फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। ये आबे हयात चश्मा हयात बन जाएगा, फिर जिंदगी ही जिंदगी। जनाब,
मुझे वो पानी पिलाइए ताकि मैं फिर कभी प्यासी ना हूँ और ना ही पानी भरने के लिए फिर यहाँ आऊँ। जाओ अपने शौहर को बुला लाओ। मेरा शौहर नहीं है। तुम ठीक कहती हो कि शौहर नहीं। 5 शादियां पहले कर चुकी, अब छठे के साथ बगैर निकाह के रह रही हो। बड़ी सच्ची हो तुम। हजूर, मुझे तो लगता है आप कोई नबी हैं। मेरे समारी बुजुर्गों ने इस पहाड़ पर अल्लाह की इबादत की। आप यहूदी ये कहते हैं कि यरूशलेम में अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। बीबी, यकीन रखो, वक्त आता है जब अल्लाह की इबादत ना तो इस पहाड़ तक रहेगी न यरूशलेम तक। तुम समारी नहीं जानते कि किसकी इबादत करते हो। वो वक्त आता है, बल्कि आ पहुंचा है, जब लोग इश्क इलाही से सरशार होकर अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। और अल्लाह ताला यही चाहता है। खुदा की जात नूर है। नूर किसी एक मुकाम तक महदूद नहीं हो सकता। यह है उसकी इबादत करने का सही तरीका। तो ये है वो औरत। मालिक किस औरत से बातें कर रहे हैं? उन्हें मालूम नहीं ये कैसी औरत है। मैं जानती हूँ कि मसीहा आएंगे। जब आएंगे तो सब बातें बता देंगे। वो मैं ही हूँ। उस आदमी से मिलो जिसने मुझे सारी बातें बता दी। कहीं वो मसीहा तो नहीं? मसीहा? मसीहा? वो माऊद नहीं, ये नहीं हो सकता। और देखो, आओ। हुजूर, कुछ खा लीजिए। खाने के लिए मेरे पास ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। क्या आका के लिए कोई खाना लाया? मेरा खाना कि अल्लाह ताला की मशीयत पर चलूं, वो काम मुकम्मल करूं जिसके लिए भेजा गया हूं। फसल पक चुकी और कटने के लिए तैयार है। देखो कितने लोग आ रहे हैं। क्या ये खुशखबरी सोमारियों के लिए भी है? शहर के लोग हजरत ईसा के पास आए और दरखास्त की कि हमारे पास रहें और तालीम दें। हम वहाँ 2 रोज तक रहे और बहुत से समारी उन पर ईमान लाए। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। मैं पूछता हूं तुमसे जो बाप हो, अपने बेटे को मछली मांगने पर सांप दोगे या अंडा मांगने पर बिच्छू दोगे? तुम गुनाहगार होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो फिर परवरदिगार अपने मांगने वालों को कुदरत इलाही से क्यों ना नवाजेगा? मैं तुमसे कहता हूं, इस बात की फिक्र न करो कि क्या खाएंगे, न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से बढ़कर। कौवों पर गौर करो, न बोएं न काटें, न उनका गोदाम न ही कोठी, रज़ाक इन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में से कौन फिक्र करके
अपनी उम्र में एक पल बढ़ा सकता है। जब तुम इतनी छोटी बात भी नहीं कर सकते तो फिक्र क्यों करते हो? फूलों को गौर से देखो कैसे बढ़ते हैं, न मेहनत करें न काटें। ऐसा लिबास तो हजरत सुलेमान को भी नसीब नहीं हुआ था। अगर खुदा मैदान की घास को जो कल तनूर में होगी आज ऐसी पोशाक पहनाता है तो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? ऐ कम एतकादो, मालिक हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कह सकते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग तो तुम्हारी मानता। आजमाइशें तो आएंगी ही, लेकिन तुफ उस पर जिसके वसीले से आए। इन छोटों में से ठोकर खिलाने की बनिस्बत उस शख्स के लिए बेहतर होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंक दिया जाता। खुदा के इक़्तिदार आला की मिसाल यूं है जैसे कोई शख्स राई का दाना जमीन में बो दे, ये उगकर दरख्त बन जाता है और परिंदे उसकी शाखों पर घोंसले बनाते हैं। इसकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। आप गुनाहगार और महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाते पीते हैं? गुनहगार? तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि उनको जो बीमार है। मैं पारसाओं को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा की दावत देने आया। वो तशरीफ ला रहे हैं, देखिए आ गए हैं। हजरत ईसा, हजरत ईसा। मेरी बेटी को बचा लीजिए, मालिक रहम करे। वो 12 बरस की है और बढ़ने वाली है। खुदारा मेरे साथ चलिए। अगर मैं उनकी पोशाक ही छोड़ूं तो शिफा पा जाऊंगी। यायर अफसोस है कि यायर उसे अकेला छोड़ दो। मालिक, तेरी बेटी मर गई है। मालिक को तकलीफ ना दो। परेशान मत हो, ईमान रख, ठीक हो जाएगी वो। मुझे किसने छुआ? मुझे किसी ने छुआ। मुझसे नूर का शोला निकला। हुजूर, मैंने आपको छुआ है। 12 बरस से मैं इस मर्ज में मुब्तला थी। मैं सब कुछ लुटा चुकी, लेकिन हकीम कुछ न कर सके। जैसे ही आपकी पोशाक छुई, शिफा पा गई। बेटी, तूने अपने ईमान से शिफा पाई। बेफिक्र होकर जा। शुक्रिया। उसने उसे बेटी कहा? हाँ, उसी को बेटी कहा जो तकरीबन 12 बरस से पलीद थी। मसीहा ने उसकी इज्जत बहाल की। मालूम नहीं ये कामिल शिफा कैसे मिली, कुदरत इलाही से या मसीहा के नजर करम से।
मत रो, वो मरी नहीं, सो रही है। उठो बेटी। इसे कुछ खाने को दो। बात सुनो, किसी को मत बताना क्या हुआ। वो जिंदा है, मेरे मालिक की बेटी। आका ने उसे जिंदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिंदा है। आपके अजीब मौजज़ात की खबर दूर तक फैल गई और बहुत से लोग मसीहा पर ईमान लाने लगे। मेरे मालिक, इन लोगों को भेज दें ताकि ये गांव की तरफ जाएं और अपने खाने पीने और रहने सहने का इंतजाम करें, क्योंकि यहाँ तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। इनके खाने का इंतजाम तुम करो। हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। रब्बुल आलमीन, कायनात के मालिक, तू ही जमीन से रिस्क पैदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौजिज़ा है। ये नाकाबिले यकीन है। हमने सेक होकर खाया और जब बचे हुए टुकड़ों को जमा किया तो 12 टोकरे भर गए। ये अजीब मौजज़ा हमारी तवज्जो उन बरक़ात की तरफ लाता है जो अल मसीह पर ईमान लाने से हासिल होती हैं। मेरे साथ इस राह पे कौन चलेगा? मालिक, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन पहले मुझे जाने दें कि घर वालों को अल्लाह हाफिज कह आऊं। हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला कुर्बे खुदावंदी के लायक नहीं है। अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो उसे अपना आप भी भुलाना होगा और हर रोज दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहे। जो मुझसे ज्यादा अपनी जान अजीज रखे उसे खोएगा। जो मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान करे वो उसे बचा लेगा। अगर इंसान सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान गवा बैठे तो क्या फायदा? जो मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा तो जब मैं परवरदिगार की शान और फरिश्तों के साथ आऊंगा, मैं मौसिन इंसानियत भी उससे शर्माऊंगा। यकीन मानो, ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की हाकिमियत आला को कायम होता ना देखें तो मौत का मजा ना चखेंगे। मुट्ठी भर पैरोकारों मत डरो, परवरदिगार तुम्हें जन्नत देना चाहता है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो। अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो फटते नहीं। अपना खजाना आसमान पर जमा करो जहां उसे कोई खतरा नहीं। वहां चोर नकद नहीं लगा सकता, कीड़ा उसे खा नहीं सकता। जहां तुम्हारा माल वहीं तुम्हारा ख्याल। बीबी, तुम्हें शिफा मिल गई।
मोजज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह 18 बरस से। मालिक, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। 6 दिन हैं जिनमें हम काम करते हैं। शफा के लिए तुम उन दिनों में से किसी दिन आओ, लेकिन हफ्ते के दिन नहीं। मुनाफिक लोगों, तुम्हारा बैल हो या गधा तो सबके दिन खोलकर पानी पिलाने ले जाते हो, और यहाँ यह एतराज। यह है वो दुख्तर इब्राहिम जो 18 बरस से शैतान के चुंगल में थी। क्या इसे सब्त के दिन आजाद नहीं होना चाहिए था? लोग हजरत ईसा पर ईमान ला रहे थे और मजहबी रहनुमा इसे खतरा समझते थे। मैं समझता हूँ कि लोगों ने उसे बादशाह मान लिया है। बादशाह? भिखारियों और डाकुओं का बादशाह? ऐसे बहुत देखे हैं, दावे करते और चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। अंधे मत बनो, उसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। उसे बादशाह समझते हैं। मैं आपको खबरदार करता हूँ कि अगर ये शख्स झगड़े फसाद का सबब हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। शायद वो ठीक है। अब जलीली का मुकाबला करना है। ये तो बहुत थोड़ा है। सिर्फ 2 छोटे सिक्के। क्या वो ज्यादा नहीं दे सकती थी? मैं कहता हूं इस गरीब बेवा ने बाकियों से ज्यादा दिया, क्योंकि उन सब ने अपने माल की कसरत से नजराना दिया, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितना था सब दे डाला। हमें बता, ये बातें कहने का तुम्हें क्या हक है? किसने तुम्हें इख्तियार दिया? अब मैं भी एक सवाल पूछता हूं, हजरत याया ने पाक गुस्ल का इख्तियार अल्लाह से पाया या इंसान से? हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। तो फिर मैं भी नहीं बताता कि किस इख्तियार से ऐसा करता हूं। लेकिन मुखालिफिन हजरत ईसा का तर्स जानने के बजाय मुजरिम ठहराने के लिए उनमें ऐब ढूंढते रहे। मालिक, इस औरत को तो हमने खुद रंगे हाथों पकड़ा है। शरीयत मूसवी में लिखा है कि ऐसी औरत संसार कर दी जाए। इसे संसार करें। संसार करो। आप क्या कहते हैं? मालिक, 2 गवाह भी मौजूद हैं। इस खातून के साथ क्या किया जाए? वो आदमी कहाँ है? शरीयत कहती है उसे भी संसार किया जाए। तुम में से जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। बीबी, कहां गए सब? तुम्हें सजा देने वाला कोई भी नहीं?
नहीं, कोई नहीं। तो मैं भी तुझे सजा नहीं देता। चली जाओ, फिर गुनाह ना कर। मुझे उठा लीजिए ना। ऊपर आजा, अब देख सकते हो। मैं हज़रत ईसा को देख सकता हूँ। ये शरीयत की तौहीन करता, एक शख्स बीज बोने निकला, सबक को तोड़ता डंडी के पास गिरे और रोने लगा, और गुनहगारों के साथ उठता बैठता है। कुछ चट्टान पर अगर ये यही करता रहा तो फिर हर कोई इस पर ईमान ले आएगा और रोमी हुकूमत हमारी बड़ी इबादतगाह मिस्मार कर देगी। साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया, कुछ अच्छी जमीन में गिरे। ना वो मसीहा पर ईमान लाए, ना ही उन्हें फांसने में कामयाब हुए, लेकिन अहद कर लिया कि वो जो मसीह मौत होने के दावे करता है उसे रोकेंगे। उन्होंने हजरत ईसा को पकड़वाने के लिए एक आदमी ढूंढा। आप सहाबा को अक्सर कोहे जैतून पर दुआ के लिए ले जाया करते थे। उस रात आप इंतहाई परेशान नजर आ रहे थे। तुम क्यों सो रहे हो? उठो, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। यहूदा, तुम प्यार के बदले मुझे पकड़वाना चाहते हो? मालिक, क्या हम तलवार चलाएं? इसे गिरफ्तार कर लो। बहुत हो चुकी। क्या मैं डाकू हूं कि तुम तलवारें और लाठियां लेकर आ गए? मैं हर रोज बैतुल मकदिस में बैठा रहता था, लेकिन मुझ पर हाथ ना डाला। अंधेरों की औलाद निकल आए अंधेरों में। गिरफ्तार करो। उनके दोस्त ने उन्हें पकड़वाया। उसके अपने साथियों में से एक ने। वो जिसे हम अच्छी तरह जानते और भरोसा करते थे। ख्याल रखो। उस रात सिपाहियों ने उनका मजाक उड़ाया और मारा। बता किसने मारा? नबी हो तो बताओ। अब कौन मारेगा? बंद करो, मैंने कहा बंद करो। इसे अंदर शरई अदालत में लाओ। हमें बता कि क्या मसीहा तू ही है? अगर मैं बताऊं तो यकीन न करोगे। अगर मैं एक सवाल पूछूं तो जवाब न दे पाओगे। लेकिन अब से मैं खुदाए कादिर मुतलक का दस्ते रास्त होऊंगा। तो क्या तुम मसीह मऊद हो? तुम खुद ही तो कह रहे हो। उसने कुफ्र बका है। मजीद किसी गवाही की क्या जरूरत है? ये करने का उसे कौन इख्तियार देता है? अब तुमने उसका कुफ्र सुन लिया? हमने अपने कानों से सुन लिया है। ये तो वाजिबुल कत्ल है। हम इसको पिलातुस के पास ले जाएं।
बस वो मसीहा को रोमी गवर्नर पिलातुस के दरबार में ले गए। बेरहम पिलातुस हजारों लोगों को मसलूब कर चुका था। इस वक्त सुबह सवेरे यहाँ क्या लेने आए हो? हमने इसे इसलिए पकड़ा कि ये धोखेबाज है। इसने बैतुल मक़दस में भी हलचल मचा दी। ये मुजरिम है। इसको ये कहते सुना है कि महसूल ना दो। ये मसीहा होने का दावा करता है, बादशाह का भी। बादशाह? क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? आप खुद कहते हैं। रोमी हाकिम के अलावा हमारा कोई बादशाह नहीं। अल्लाह का बेटा होने का दावा करता है। हमारी शरीयत के मुताबिक वाजिबुल कत्ल है। ये आदमी सजाए मौत के लायक नहीं। लिहाजा मैं इसे कोड़े लगवाकर छोड़ देता हूँ। अगर इसे छोड़ दिया तो आप रोमी हुकूमत के खैरखा नहीं। इसे मसलूब करो। हाँ, इसे मसलूब करो। इसे तो सजाए मौत दी जाए। तुम इसे कोड़े मारो। वो कोई बादशाह होने का दावा करता है और रोमी हुकूमत का बागी है। तू सब तुम किस इंतजार में हो? इससे दूर रहो, इसे मार डालो, इसे मसलूब करो। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। तुम्हारा नाम? शमौन करीनी है जनाब। इस तरफ आओ। रस्सियां काटो। तुम ये सलीब उठाओ। चलो आगे बढ़ो। पीछे पीछे हटो। उसे छोड़ दो। मालिक, हम आपके लिए रोते हैं। ये पी लीजिए। पी लीजिए मालिक। ऐ ख़वातीन यरूशलेम, मुझ पे मत रो। अपने आप और अपने बच्चों पर रो। अगर मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा होता है तो तुम सूखे दरख्तों के साथ क्या ना होगा। हम आपकी मदद करेंगी।
सलीबे खड़ी करो। परवरदिगार ने माफ फरमा, ये ना समझी में ऐसा करते हैं। उसने दूसरों को बचाया, अब अपने आप को बचाए। तू मसीहा है तो अपने आप को बचा, सलीब से नीचे उतर आ। अब हमें कोई अपना मौजज़ा दिखा। जो सलीब पर लटकाया जाता है अल्लाह की तरफ से लानती है। और दुख तेज तलवार की तरह मुझे छेड़ डालेगा। दुख की बात यह है, खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। लेकिन क्यों? क्या तू मसीहा नहीं? बचा अपने आप को और हमें भी। क्या तू खुदा से नहीं डरता? हम उसी सजा में गिरफ्तार हैं जिसमें ये है। इसने कोई बेजा काम नहीं किया। मसीहा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। मेरा वादा रहा, मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस में होगे आज ही। दोपहर के वक्त करीबन 3 घंटे तक तारीकी छाई रही। परवरदिगार, मैं अपनी जान तुझे वापस लौटा रहा हूं। ओहो, यकीनन ये कोई पारसा शख्स था। यहूदी शरई अदालत में एक नेक नाम आदमी था जिसने हजरत ईसा के मुजरिम ठहराने में कोई किरदार अदा न किया, और उसका नाम यूसुफ रामती था। उसने पिलातुस से इजाजत मांगी कि सब्त का आगाज होने से कब्ल हजरत ईसा की लाश को दफना दे। रास्ता दीजिए, हम मालिक की लाश की तरफ जा रही हैं।
तुम सब आ सकती हो। आओ चलें, सब्त का आगाज होने को है। उन्होंने उसे मारा क्यों? अगर वो अल्लाह की तरफ से था तो उसने उसे मरने क्यों दिया? मैंने भी इन बातों पर गौर किया। हजरत ईसा अल मसीह को बदरूहों पर इख्तियार था। मुर्दे भी आपकी सुनते थे। क्या अपना दिफा नहीं कर सकते थे? मैंने 3 साल तक ये समझकर उनकी पैरवी की कि वो मसीह मऊद हैं, लेकिन अब तो वो जा चुके थे। मैं कहाँ जाती? बड़ी अफसोसनाक कहानी है, लेकिन आखिरकार अल्लाह की शान जाहिर होती है। वाक़ए सलीब के तीसरे रोज इतवार की सुबह हम खुशबुएं लेकर आपकी कब्र पर आईं। कब्र से पत्थर हटा हुआ है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, सुनो, हम कब्र पर गई। पत्थर हटा हुआ था, लेकिन मालिक की लाश न पाई। वो हमारे मालिक की लाश निकालकर मालूम निकाले गए। क्या लाश नहीं है? जाएं, आप खुद जाकर देख लें। कब्र का जायजा लेने के बाद पतरस दूसरे हवारियों की तरफ फिरे, लेकिन मैं बाहर हैरान खड़ी रोती रही। सिपाही उनकी लाश को ले गए या फिर फरीसी ले गए। उन्होंने हमारी उम्मीदों का गला घोंट दिया। हमारे लिए लाश तो रहने देते। बीबी, क्यों रो रही हो? वो मेरे आका की लाश को ले गए, मालूम नहीं कहाँ रखा है। बीबी, तुम क्यों रो रही हो और किसे ढूंढ रही हो? जनाब, अगर आप उन्हें ले गए हैं तो बताएं कि कहाँ रखा है, ताकि मैं उन्हें देख तो लूं। मरियम, मेरे आका। मुझे मत रोको, मुझे परवरदिगार के पास जाने दो। आप जिंदा है मालिक। जाओ और ये खबर मेरे भाइयों को सुनाओ। आपने हमें भुलाया नहीं, अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। उन्हें बताओ। मैंने मालिक को देखा है, मैंने मसीहा को देखा है।
क्या वो जिंदा हो गए हैं? जी हाँ। कैसे? मौत उन्हें रोक न पाई। तो फिर उन्हें मरना क्यों पड़ा? ताकि मौत पे फतह पाएं। हाँ, मैं उस दिन ना समझ पाई, लेकिन जिंदा होने के बाद वो हम पर कई मर्तबा जाहिर हुए और हमें तबलीग की। हजरत ईसा अल मसीह की आमद से सैकड़ों साल पहले अंबिया ने पेशन गोइयां की कि मसीह मऊद आकर दुख उठाएंगे। हजरत इशाया फरमाते हैं, हमारी खताओं के सबब से घायल हुए, हमारे गुनाहों के बाइस कुछ ले गए, हमारी ही सलामती के लिए उन्हें सजा मिली ताकि उनके मार खाने से हम शिफा पाएं। हजरत मूसा ने फरमाया, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया लानती है। जब हजरत ईसा ने सलीब पर वफात पाई तो उन्होंने आपके और मेरे गुनाहों की सजा और मौत अपने ऊपर ले ली। अल मसीह के मसलूब और जिंदा होने से हमें इब्लीस के आहनी पंजों से आजादी, तारीकी की कुव्वतों से रिहाई और खौफ और शर्मिंदगी की जिंदगी से आजादी मिल गई। अल्लाह ने इस बरकत का वादा हजरत इब्राहिम से उस वक्त किया जब ये फरमाया कि उनके वसीले से तमाम लोग बरकत पाएंगे। सब लोग? ख़वातीन भी? हजरत ईसा अल मसीह ने मुझे दुख्तर इब्राहिम कहा, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, ऐसी जिसे वो बरकत देना चाहता है, उस औरत जैसी जो 12 बरस से बीमार थी, या जैसी मैं हूं। अब खौफ और शर्मिंदगी में जिंदगी बसर करने के दिन गए। ये नहीं कि अल्लाह हम पर नजर नहीं करता या हमारी सुनता नहीं। मसीह ने अपनी बाबत फरमाया, कुदरत इलाही मेरे साथ है। उसने मुझे गरीबों को नवीज सुनाने के लिए चुना है। उसने मुझे कैदियों को रिहाई बख्शने और अंधों को बिनाई देने के लिए भेजा है। सताए हुए लोगों को आजाद करने और ये बताने के लिए आया हूं कि लोगों को बचाने का वक्त आ गया है। हजरत ईसा अल मसीह ने ऐसी औरतों पर भी तरस खाया जिनको नापाक समझा जाता था और उन्हें शिफा बख्शी। हजरत ईसा अल मसीह ने औरतों, मर्दों, बच्चों, पारसाओं और गुनाहगारों में भी तबलीग की और उनका वकार बहाल किया और बड़े ही तरस का इजहार किया। लोगों को शिफा बख्शी, उनमें से जिन्नात निकाले और बच्चों को शैतान के चुंगल से आजाद किया। इससे जाहिर होता है कि आपको हर किस्म की शैतानी कुव्वतों पर भी इख्तियार था। हजरत ईसा ने मुर्दे जिंदा किए। आपने साबित किया कि मुझे मौत पर भी इख्तियार है। अगरचे शैतान का ये ख्याल था कि जब ईसा को मसलूब कर दिया गया है तो फतह मेरी है, ताहम आपने मुर्दों में से जी उठकर शैतान की सारी कुव्वतों और मौत पर फतह पाई। फिर तो वो अल मसीह थे। अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मसीहा ही ऐसे मौजज़ाना काम कर सकता था जो हजरत ईसा ने किए। ऐसा वही कर सकता है जो खुदा तर्स, कादर और काबिल एतमाद हो, जैसे हजरत ईसा हैं, कि आप पर ईमान लाया जाए। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई तो उसने मर्दुज़न को अपनी हुजूरी से लुत्फ अंदोज होने के लिए बनाया और यही उसका मंसूबा था। लेकिन हमने उसका यकीन न किया और हुक्मदूली की। इस अलमिया ने हमें अल्लाह से जुदा कर दिया और मर्द और औरत का करीबी रिश्ता भी मुतासिर हुआ। हमने भी ये रवायत जारी रखी। कलामुल्लाह में लिखा है कि कोई भी नहीं जिसने गुनाह न किया हो, गुनाह की सजा अल्लाह ताला से दूरी और मौत है। लेकिन अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम उससे और उसकी मोहब्बत से दूर होकर शर्मिंदगी और खौफ में जिंदगी गुजारें। जैसे अल्लाह ताला ने फर्जंदे इब्राहिम की जगह मेंढा मुहैया किया, वैसे ही उसने हजरत ईसा को भेजा कि हमारी जगह कुर्बान हो।
आपकी जिंदगी, मौत और जी उठने के बायस अल्लाह ताला के साथ उन लोगों का ताल्लुक बहाल हो जाता है जो आप पर ईमान लाते हैं, और खुदाए कादिर के साथ ये करीबी ताल्लुक कभी खत्म नहीं होगा। सलीब पर एक डाकू मरते वक्त हजरत ईसा पर ईमान लाया तो आपने उस वक्त वादा फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस में होगा। जो लोग हजरत ईसा पर ईमान लाते हैं वो अबदी सजा से बचकर कुर्बे खुदावंदी में जिंदगी गुजारेंगे। कैसे? बजरिया ईमान उनकी पैरवी करने से। मुझे कैसे कबूल करेंगे? उन्होंने शरफ बख्शा। मैं कैसे जानूं? ईमान लाओ, उनसे मांगो, उनसे बात करो। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी जात पाक है। शुक्र है कि तू मुझसे प्यार करता है। मैं गुनाहगार हूँ। शुक्र है कि तूने मसीह मौत को भेजा ताकि हम शर्मिंदगी की लानत और जुर्म से निजात पाएं। शुक्र है कि आप मेरे लिए कुर्बान हुए। मैं अपने मसीहा की पैरवी करना चाहती हूँ। शुक्र है कि मुझे माफ फरमाया और कबूल किया। शुक्र है। आमीन, आमीन। शुक्र हो, उसका शुक्र हो। अल-मसीह ने फरमाया, मेरी भेड़ी मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पीछे चलती हैं। वो तुम्हें जानते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। ये अटूट रिश्ते का आगाज है। जब हम बेहतर जाने, भरोसा करें तो रिश्ता और मजबूत होगा। कलामुल्लाह पर अमल करने से। ईमान के साथ उनसे दुआ करते हैं, अहले ईमान से रफाकत रखते हैं, और जो अल-मसीह ने फरमाया वो जहन में रखते हुए दूसरों को बताते हैं। तुम पर खुदा की बरकतें, आसमान और जमीन का कुल इख्तिदार मुझे दिया गया है। जाओ और सब कौमों में तबलीग करो, उन्हें परवरदिगार के, मेरे और कुदरत इलाही के वसीले रंग इलाही में गौता दे के रंग दो। उन्हें तालीम दो उन बातों की जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूं।